हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और जो लोग मुझे सुनते हैं उनको पता है कि हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी इंटरेस्ट है उसमें मेरा। एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखी उससे रिलेटेड कि आई थिंक उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि द अननोन हिस्ट्री ऑफ खोतान किंगडम। और मैंने सीरियसली कभी नहीं सुना खोतान किंगडम के बारे में। मैंने कारा खिताई नाम का एक किंगडम के बारे में सुना है, जो कि सेंट्रल एशिया में मॉडर्न डे जो चाइना ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है शिनजियांग का, वो एरिया जिसको ईस्ट तुर्किस्तान भी कहते हैं वहाँ के लोग, वो एरिया और सेंट्रल एशिया का किर्गिस्तान वगैरह की कंट्री का एरिया ये ऑक्यूपाई करके एक किंगडम होता था, उसका नाम कारा खिताई था। तो उसके ऐसा लग रहा है खोतान वर्ड भी थोड़ा सा चाइनीज़ सेंट्रल एशियन काइंड ऑफ एरिया से लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए। What was the Khotan kingdom? Let's go to the map. And I'm going to show you a different map this time. Khotan kingdom. Take a look. So we all recognize this ओके, एक्चुअली ये उसी एरिया के साथ एडजेसेंट है या फिर उसी एरिया में आ रहा है थोड़ा बहुत। map. It's the map of this Indian subcontinent and Eurasia. So the dark shaded region north of India was the approximate region of the Khotan kingdom. So this kingdom was founded roughly 2400 or so years before today. Okay, and it existed until the beginning of the Turkic invasions of Central Asia and India. So the history of the Khotan kingdom is that it was established by Indians who came. ये रीजन, इसका नॉर्दर्न पार्ट एटलीस्ट, जो एक को पहाड़ी जो एरिया दिख रहा है उठा हुआ, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, हाफ ऑफ दिस शेडेड एरिया एक्चुअली टर्की ओरिजिन के लोगों का ओरिजिन ही वहीं से है। आई डोंट नो। From Mauryan era India. So the greatest emperor of the Mauryan Empire was Ashoka. Emperor Ashoka, who was one of our greatest emperors uh, in terms of power. And in terms of the fact that he unified the entire subcontinent under one uh, under his political dominion. So Ashok was one of the greatest of the Mauryan emperors. He had multiple children. We obviously know about Mahendra and Sanghamitra. These two siblings he sent to Sri Lanka to propagate Dhamma. We know that. He also had a son called Kunal. I believe Mahendra was his eldest son, but for whatever reason, Mahendra was not in line to be the next emperor. So Kunal was in line to be the next emperor. But and Ashok had multiple wives, as emperors used to have in those days. So one of his wives, who had a different son, was jealous of Kunal. She wanted her son to be the emperor, and she caused Kunal to be blinded. And obviously, she would not have done it herself. A number of people who were in her employment would have done that. So Kunal was blinded, and because of this, he could not become the emperor. So eventually, Kunal's son Samprati, who was Ashok's grandson, became the next emperor. Now, the people who blinded Kunal, obviously, it would not make Ashok happy that his son, the crown prince, was blinded. So apparently, the story goes, we're not sure if it is entirely true, but the story goes that these people, these high-ranking people, were expelled out of India, north of the Himalayas, and possibly it was they who founded the kingdom of Khotan, or maybe it was somebody else. But what we know is that Khotan was founded by Indians from Mauryan era India, and then it flourished for a very long time until the Turkic invasions of Central Asia and India, which destroyed all traces of Buddhism, Hinduism, and Indian culture and presence from Central Asia. So that's how the kingdom of. एक्चुअली इसका जो ये अपर पार्ट है ना, ये गोबी डेजर्ट में आता है, जो कि गोबी डेजर्ट जो तो टर्की के जो लोग हैं, अगर वहाँ के काइंड ऑफ ओरिजिन लोग ही माने जाए, एक्चुअली ओरिजिन तो उनका और पीछे से है। ओरिजिन उनका है नॉर्थ साइबेरिया से, जो टर्की के ओरिजिन के लोग हैं। तो आई थिंक जब वो डिसेंड हुए, वो एक्चुअली ओरिजिन हुए नॉर्थ साइबेरिया से। आप लोगों ने शायद यकूतिया सिटी के बारे में सुना होगा। यकूतिया एक सिटी भी है और रीजन भी है नॉर्थ साइबेरिया में, रशिया का। और उसे आई थिंक दुनिया की सबसे ठंडी इनहेबिटेड जगह भी कहा जाता है।
उस एरिए से टर्की के लोगों का ओरिजिन हुआ था। और वो फिर आई गेस वहाँ से सेंट्रल एशिया में आए होंगे, और जबकि ये बात कर रहे हैं ये शायद उससे पहले की बात हो रही है। क्योंकि ना मुझे बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इस चीज़ से कि ये कह रहे हैं कि टर्की के लोगों ने आके फिर इनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया या वहाँ से इनको मार दिया या जो भी किया। तो मैं इसके बारे में स्टडी करूँगा कि क्या टर्की के लोग नॉर्थ एशिया से उससे किस वक्त में आए थे, और उससे पहले यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे। वैसे सेंट्रल एशिया की एक ख़ास बात है कि बहुत ज़्यादा लाइक मिस्टीरियस जगह है वो, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज जनरल अंडरस्टैंडिंग में है नहीं, जबकि उन्होंने इन्फ्लुएंस बहुत किया है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों को हम टर्की मुस्लिम रूलर्स कहते हैं, दिल्ली सल्तनत और ये सब, और उसके बाद मुगल्स भी, ये लोग एक्चुअली इनको बहुत अफ़गान मानते हैं बहुत सारे लोग। बट इनमें से ज़्यादातर एक्चुअली मॉडर्न डे किर्गिस्तान की जो कंट्री है और उसके साथ में ही उज़्बेकिस्तान का फरगाना वैली का एरिया लगता है, ये सारा एक ही बहुत क्लोज एरिया है। इस एरिया से आए हुए लोग थे एक्चुअली, ना कि अगर आप देखोगे भी तो ये जो किंगडम खोतान का जो वेस्टर्न पार्ट है, इसके जस्ट ऊपर आपको एक छोटा सा डॉट दिखेगा, ये यही है फरगाना वैली। तो यहाँ से आए हुए लोगों के कांड थे वो इंडिया में किए हुए, ना कि अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान तो एक्चुअली पार्ट था इंडिया का बिफोर दैट। Khotan ended. Uh, and Khotan, Khotan produced many scholars and all that. For instance, there is a very famous scholar who was of Indian origin, but who spent his life in China. His name was Kumarajiva. So Kumarajiva they call him a Buddhist monk. They call him a missionary. These are all you know Western perspectives. He was a scholar in the Vedas as well. He was learned in the Vedas as well, not just in the Buddhist scriptures. So I believe that his father could have been from Khotan, or his father probably was from northern India, probably Kashmir, and his mother was probably Khotanese or from Kucha or something like that. So very interesting history. And it was definitely Indians who established the Khotan kingdom. Much of Central Asia was Indian or Indianized. There were multiple migrations out of India before 0 AD, multiple ways of migrations out of India, starting from the Rigvedic times themselves. And these people who went out of India established Indianized kingdoms all across Central Asia. And they kept track of their lineage and all that. And many of them claimed descent from Lord Rama and various other great rulers of India. And it was all of this was the Indian presence in Central Asia was destroyed, eradicated, wiped out by the Turks, the Turkic invaders, who destroyed all traces and vestiges of Indian culture and genetics to some extent from Central Asia. And today you will find ruined monasteries, ruined temples all across Central Asia. And those are rare because typically they will be destroyed and something else will be built on top of that. So, yeah. इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल अगेन, इन चीज़ों को कितनी सर्टेनिटी के साथ इस्टेब्लिश किया जा सकता है ये अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, बट इसका एक एग्जांपल जो कि इस चीज़ को प्रूव करता है वो है कज़ाकिस्तान के जस्ट नॉर्थ में रशिया के अंदर एक स्टेट आता है या प्रोविंस आता है उनका, वो ओब्लास्ट कहते हैं उनको वहाँ पे, तो सूमी या समथिंग नाम है उसका, मुझे अभी नाम भूल रहा है, जो कि एकमात्र रशिया का रीजन है जो कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है आज भी, आज के टाइम पे मॉडर्न डे में। और अगर देखा जाए तो उनके आसपास के किसी भी एरिया में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी के लोग आपको नहीं मिलेंगे। साउथ में कज़ाकिस्तान है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है जनरली या नॉन रिलीजियस है। रेस्ट ऑफ रशिया में रशियन ऑर्थोडॉक्स नाम का रिलीजन है जो कि उनके आसपास के एरिया में आता है। एक दूसरा सदर्न रीजन है रशिया का जो कि नॉर्थ कॉकेसस है, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है। बट इस वाले रीजन में जो कि नॉर्थ ऑफ अफ़गानिस्तान, नॉर्थ ऑफ कज़ाकिस्तान है, यहाँ पे
उनका आसपास का जो रीजन है सारा रशियन रीजन, उसमें मेजॉरिटी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले हैं, और साउथ में जो कजाकिस्तान है उसमें मुस्लिम्स हैं। तो वो कहाँ से वहाँ पे इन द मिडल ऑफ नो वेयर बुद्धिस्ट वहाँ पे आ गए? तो वो शायद उन्हीं लोगों के या उन्हीं डायनेस्टीज़ के रेमिनेंट्स में से एक होंगे जिनकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट एनीवे काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसमें से काफ़ी कुछ ऐसा है जो मुझे, जिसकी मुझे डिटेल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मुझे खुद ही और पढ़ने की ज़रूरत है उसके बारे में शायद। तो मुझे नहीं पता मैं और क्या बोल सकता हूँ, बट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। कारक, मुझे खोतान किंगडम ने फॉर सम रीज़न कारक हिताई वर्ड याद दिलाया, और कारक हिताई थोड़ा बड़ा एम्पायर था, बट इसी सेम एरिया के अंदर एक एम्पायर था, और वो एम्पायर था लगभग 1100s 1200s के आसपास। बट एनीवे इंटरेस्टिंग नॉनदलेस।